اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار آج ایک اور پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس میں خصوصاً میں اپنے مسیحی بھائیوں سے مخاطب ہوں، جو بھی اگر چاہیں تو رسپانڈ کر سکتے ہیں، مجھے خوشی ہوگی۔ آج کا موضوع ہے الوہیت مسیح، یعنی جیسا کہ مسیحی حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح بھی خدا ہیں، تو اس موضوع پر بات ہوگی۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو نہ صرف یہ کہ دعویٰ جو کرتی ہے وہ خود کرتی ہے، بلکہ اس کی عقلی دلیل بھی خود ہی دیتا ہے۔ خدا کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے مدد لے دلیل کے سلسلہ میں۔ اور خود یسوع مسیح کا بھی یہی طریق تھا کہ وہ انسانی گواہیاں اپنے لیے قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ خدا کی گواہی قبول کرتے تھے، جیسا کہ یوحنا باب 5 میں یہ لکھا ہوا ہے، اور میں نے پہلے پروگرام میں بھی اس کا حوالہ دیا تھا کہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں اپنے حق میں انسانی گواہی قبول نہیں کرتا، بلکہ خدا میرا گواہ ہے۔ تو اسی طرح قرآن کریم بھی جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کی دلیل خود دیتا ہے، وہ انسانوں کا محتاج نہیں ہے۔ اور یہی توقع کرتے ہیں ہم اپنے مسیحی برادران سے کہ جب وہ رسپانس کریں تو جو دعویٰ اور دلیل دونوں چیزیں وہ اپنی الہامی کتاب سے ان کو دکھانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دعویٰ تو کہیں کہ جی بائبل میں یہ موجود ہے اور دلیل اس کی خود دیں۔ نہیں، دلیل جو ہے وہ خدا کے کلام کو خود دینی چاہیے۔ بہرحال میں جو دعویٰ کیا ہے قرآن کریم نے کہ مسیح خدا نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تو تھا، یعنی رسول کے علاوہ ان کی کوئی اور الہی حیثیت نہیں تھی۔ اس سے پہلے جتنے رسول تھے سب کے سب گزر چکے ہیں، یعنی جتنے بھی رسول اس سے پہلے آئے ان کا انجام یعنی وہ وفات پا چکے ہیں۔ اور اس کی ماں صدیقہ تھی۔ دیکھیں یہاں قرآن کریم نے ایک دلیل تو یہ دی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے، اور یہ دلیل استقرائی ہے کہ اس سے پہلے بھی جتنے لوگ دنیا کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ انسان ہی تھے، کیونکہ وہ گزر چکے ہیں، یعنی وفات پا چکے ہیں۔ اور اس کی ماں صدیقہ تھی، اور دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی اب نہیں کھاتے۔ تو
इससे पता चलता है कि कुरान एक तो दावा करता है, यानी मसीह इब्ने मरियम सिर्फ रसूल थे, खुदा नहीं थे, और उसकी दलील, दो दलीलें दी हैं इसमें। एक ये कि उससे पहले जितने लोग भी अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजे वो वफात पा चुके हैं, जो इस बात पर दलील है कि वो भी फ़ानी इंसान थे और वो खाना खाया करते थे। दूसरी दलील ये दी उनकी खुदा ना होने पर कि वो और उनकी वालिदा दोनों खाना खाया करते थे, और जो खाना खाए जाहिर है वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा तो खाने का मोहताज नहीं है। अब हम इस बिना पर चंद असूली सवाल करेंगे अपने मसीही भाइयों से यीशु की खुदाई के बारे में। एक तो ये कि मसीह ने खुद यहूदियों के बारे में मत्ती बाब 23 उसके शुरू में बताया है। क्या बताया है कि फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस वो जो कुछ कहें और तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो। देखें कितने जोरदार अल्फाज में कहा है कि यहूदी जो कलाम इलाही की तशरीह करते हैं, जो उसकी तफसीर करते हैं और जो तुम्हें बताते हैं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो। यानी उनके पास जो किताब है, जो उसकी वो तशरीह करते हैं, वो तुम पर फर्ज है कि वो माने, लेकिन सिर्फ वो बिगड़ चुके हैं, काम उन जैसे ना करो, क्योंकि वो खुद उन पर अमल नहीं करते जो वो करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या यहूदी जो वो आयात हैं बाइबल की जो मसीही हजरात के नज़दीक उनकी खुदाई की दलील हैं, क्या यहूदी भी उनकी वही तशरीह करते हैं जो कि मसीही हजरात करते हैं? क्या यहूदियों के नज़दीक बाइबल में यानी ओल्ड टेस्टामेंट में कहीं तसलीस का कोई जिक्र है, या खुद मसीह ने उन पेशगोइयों को जो आज मसीही हजरात हज़रत ईसा इब्ने मरियम पर चस्पा करते हैं, क्या खुद मसीह ने उनका हवाला देकर कहीं ये कहा है कि ये मेरी खुदाई की दलील है, फलां पेशगोई मेरी खुदाई की दलील है, फलां पेशगोई मेरी खुदाई की दलील है? बल्कि मसीह जो है वो तो खुद इस बात का इकरार करता है कि सिवाय खुदा के कोई नेक नहीं है, सिवाय खुदा के कोई नेक नहीं है। तो इससे पता चलता है कि वो अपने आप को खुदा नहीं समझते, क्योंकि इंसान जो है वो बाइबल के मुताबिक कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो गुनाह से पाक हो या खुदा के सामने आपको अपने आप को रास्त साबित कर सके। यही वजह है, चूंकि वो इंसान थे इसलिए उन्होंने ये फरमाया कि सिवाय खुदा के कोई नेक नहीं है। अब जब मसीही हजरात के सामने वो हवाले, आज मैं असूली बातें करूंगा, हवाले इंशाल्लाह फिर
دیں گے. یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو بھوک لگتی تھی. وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے قیامت کے دن کا علم نہیں ہے، نہ بیٹا جانتا ہے نہ فرشتے، بلکہ صرف خدا. وہ تو کہتے ہیں کہ خدا مجھ سے باپ مجھ سے بڑا ہے. پھر اس کو آزمایا گیا، لکھا ہوا ہے. تو جو یعقوب کا خط ہے اس میں لکھا ہوا کہ خدا جو ہے وہ آزمایا نہیں جاتا. پھر لکھا ہے پولوس کے خط میں کہ خدا ٹھٹھوں سے نہیں اڑایا جاتا. اور بائبل تو بھری پڑی ہے کہ یسوع کو ٹھٹھوں میں اڑایا یہودیوں نے، ان کے منہ پر تھوکا نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کو کانٹوں کے ہار پہنائے، بلکہ ٹچکریں کی کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اب بچ کے دکھا. تو وہ یہ دھوکہ دیتے ہیں. دھوکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ میں ثابت کروں گا کہ یہ دھوکہ ہے، کہ جی وہ اس وقت انسان تھے. مگر دیکھنا یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیح کی جو خدائی ہے کیا وہ مستقل تھی، ابدی تھی، یا آتی جاتی رہتی تھی؟ تو جب وہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ مجھے فلاں بات کا علم نہیں ہے، مجھے فلاں اختیار نہیں ہے، تو اس وقت جو ان کی خدائی روح تھی وہ کہاں تھی؟ اور دوسری یہ کہ روح انسانی جو ہے وہ اصل میں اس میں علم ہے، اس میں ہی ہر چیز ہے. یعنی اگر روح جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان کا علم بھی ختم ہو جاتا ہے اور انسان کی باقی سب طاقتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جسم کوئی چیز نہیں ہے. اصل جو انسانیت کی روح ہے وہی، اسی پہ دار و مدار ہے سارا انسان کا. جب روح نکل جاتی ہے، جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو جسم جو ہے وہ تو اسی دنیا میں خاک میں مل جاتا ہے، روح جو ہے وہ جس نے دی ہے یعنی خدا کے پاس چلی جاتی. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسیح میں ایک روح تھی یا دو روحیں تھیں، یعنی انسانی روح اور خدائی روح؟ لیکن اس کا جواب جو ہے وہ اپنی طرف سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خدا کے کلام سے جواب ہونا چاہیے. اپنی طرف سے جو مرضی دعویٰ کر دیں، پہلے بھی بہت دعوے ہو رہے ہیں. اس کا ثبوت کہ اس میں دو روحیں تھیں، خدا کی بھی اور انسان کی بھی، اس کا چیز امر کا جو ثبوت ہے وہ کلام خدا سے ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ان کی خدائی مستقل تھی یا عارضی تھی، آتی جاتی رہتی تھی. کب ان کو خدا بنایا گیا؟ پھر لکھا ہے کہ وہ خدا جو ہے وہ مجسم ہوا. تو مجسم ہوا تو وہ نظر بھی آتا ہے، لیکن قرآن بائبل تو بھری پڑی ہے اس بات سے کہ جو خدا تعالیٰ ہے وہ نہ کسی نے اس کو دیکھا ہے اور نہ کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے. یعنی خدا تعالیٰ کو نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے. تو جب وہ مجسم ہوا تو ساری دنیا ان کو دیکھ رہی تھی. تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ خدا جو ہے اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا؟ مثلاً میں آپ کی خدمت میں ایک حوالہ رکھتا ہوں جس میں بیک وقت خدا کی توحید کا بھی اقرار ہے اور اس کی یہ صفت بھی بیان کی گئی ہے. پہلی تیموتھی کا پہلا خط باب نمبر 6 آیت نمبر 16، پولس محترم لکھتے ہیں، واحد حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند. اب یسوع کو بار بار بائبل میں خداوند خداوند کہا گیا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ ہے وہ خداوندوں کا بھی خداوند ہے. تو کیا خدا کا بھی کوئی خدا ہوا کرتا ہے؟ بقا صرف اسی کو ہے.
अब यीशु तो खुद ईसाई मानते हैं कि वो मर गए, फिर बका कैसी रही? यहां लिखा हुआ है कि बका सिर्फ उसी को है, सवाए उसके कोई बाकी नहीं रह सकता। और जो मर जाए वो कैसे खुदा हो गया? अब ये भी एक मसला है वैसे कि मरने वाला खुदा था या इंसान था। वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं। यहां वो कह रहे हैं कि वो मुजस्सम हुआ। मसीह खुद कह रहे हैं, बाब 4 यूहन्ना की इंजील, यहूदी एक समारीती औरत मिलती है उनको, और वहां पहली बात तो यह को कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। क्या खुदा को भी प्यास लगा करती है? और फिर आगे मजीद उसमें जब डिस्कशन होती है उसके साथ, जब उसके साथ मजीद गुफ्तगू होती है यीशु मसीह की, तो फरमाते हैं कि खुदा रूह है। अब यूहन्ना साहब लिख रहे हैं कि खुदा मुजस्सम हुआ, यीशु खुद फरमा रहे हैं कि खुदा रूह है। दूसरी बात यह है, लिखा है कि वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती। और यीशु मसीह की तो के साथ तो हर किस्म की, हर शख्स की रसाई थी। यहूदी भी उनके पास आते थे, सामरी भी उनके पास आते थे, उनके मानने वाले भी उनके पास आते थे, बच्चे भी आते थे, बूढ़े भी आते थे। तो पौलुस साहब तो फरमा रहे हैं कि उस तक किसी की रसाई नहीं है, यानी कोई खुद उसके पास उसको नहीं देखता, जैसा कुरान में फरमाया है, बल्कि खुदा खुद अपने आप को जाहिर करता है। नजरें उस तक नहीं पहुंच सकती, वो नजरों तक पहुंचता है। फिर आगे लिखा है, ना उसे किसी इंसान ने देखा, ना देख सकता है। बल्कि ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है कि खुदा को देखकर कोई जिंदा ही नहीं रह सकता। तो वो अजीब खुदा था, मुजस्सम हुआ, लोगों ने देखा भी और फिर भी लोग जिंदा रहे। ये तो बहुत बड़ा तदाद है। एक तरफ तो लिखा है कि खुदा उसको देखकर कोई, यानी खुरूज बाब 33 आयत नंबर 20 में लिखा है कि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा। तो मसीह की तो सारी दुनिया देखती थी और सारी दुनिया जिंदा रही। फिर लिखा है, इंसान, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, गिनती बाब 23 आयत 19। मगर यूहन्ना में एक वाकया लिखा है जिससे पता चलता है कि नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिका बाइबल नवीसों ने उनको उनके ज़िम्मे एक झूठ भी लगाया है। वो वाकया ये है कि यहूदियों की ईद थी यरूशलेम में, और यीशु मसीह गलील में थे। उनके भाइयों ने कहा कि तू कहता है मैं मसीह हूँ और मैं बड़े बड़े मोजज़े करता हूँ, तो बहुत बड़ी ईद हो रही है, जा अपना वहाँ जाके आप अपने मोजज़े भी दिखा और लोगों को बता अपने आप के मतलब। वो कौन शख्स है जो मशहूर भी होना चाहे और लोगों पर अपना आप जाहिर भी ना करे? तो ये लिखा है आगे, मसीह ने कहा कि नहीं, मैं इस ईद पर नहीं जा रहा, तुम जाओ, क्योंकि मेरा अभी वक्त नहीं आया। और उसके बाद लिखा है वो चला भी गया। एक दफ़ा फरमाया कि मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जाऊंगा, और थोड़ी देर के बाद चला भी गया। अब नए जो तर्जमे शाया हो रहे हैं, उन्होंने खुद महसूस किया है, बाइबल के मानने वालों ने, कि ये तो झूठ साबित हो रहा है। और अब नए तर्जुमे में लफ्ज़ येट का इजाफा कर दिया है, ख़ास तौर पर उर्दू तराजम में। अंग्रेज़ी तराजम में अभी भी बाज़ येट के बगैर हैं, और ये लिखा हुआ है कि ये येट का लफ्ज़ जो है वो बाद में इजाफा किया गया। इससे पता चलता है कि बाइबल नवीसों ने यीशु को भी नहीं बख्शा, उनके ज़िम्मे भी झूठ कर दिया। लेकिन बहरहाल खुदा की सिफ्त यह है कि खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले। इंसान तो झूठ बोल सकता है, जैसा कि पौलुस ने भी कहा है कि मेरे झूठ के बोलने से अगर खुदा का जलाल जाहिर होता है तो इसमें बुराई क्या है? वो मज़हब जिसकी बुनियाद ही झूठ पर हो, उसके मतलब ये कहना कि ये खुदा की तरफ से है, सोचने का मुकाम है मेरे भाइयों। फिर इंसान के मुतल्लिक तो ये लिखा है कि हर इंसान बेहतरीन हालत में भी बिल्कुल बेसबात है।
ज़बूर 39 चैप्टर 5। इसी तरह लिखा है पैदाइश की किताब में, तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। फिर ज़बूर 90 आयत 30 में लिखा है, तू इंसान को फिर खाक में मिला देता है, यानी खुदा। लेकिन अब मसला ये है कि इससे साबित होता है कि जैसा कि मसीही हज़रात का ये अक़ीदा है कि वो सलीब पर फौत हो गया, तो इससे पता चलता है कि वो इंसान ही थे। क्योंकि अगर खुदा जो है वो तो अब्दी है, खुदा पर तो मौत नहीं आती। अगर खुदा ही मर गया तो फिर वो निज़ाम कौन चलाता रहा 3 दिन तक? वो अलग बात है, ये अलग किसी दिन इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे कि खुदा जो है वो यीशु मसीह जो है दर हकीकत वो फौत नहीं हुए थे। मैं सिर्फ एक हवाला दे देता हूँ। वाइज की किताब में ये लिखा है 12 चैप्टर आयत नंबर 7 के मौत का नक्शा खींचा है कि मौत जब आती है तो जो जिस्म है वो तो इधर ही खाक में मिल जाता है और ज़मीन पर रहता है, लेकिन जो रूह है वो खुदा ताला के पास चली जाती है। लेकिन यीशु मसीह जो हैं ये सारे राहे बात बीच में आ गई, मैं ये भी बता दूं, उनके मतलब पता चलता है कि उनकी रूह खुदा के पास नहीं गई थी। यूहन्ना बाब 12 आयत 17 से 19 तक आप पढ़ें, बाब 20 आयत 17 से 20 तक अगर आप पढ़ें, यूहन्ना की इंजील बाब 20 आयत 17 से 20 तक, जब वो मरियम मगदलीनी को मिलते हैं और वो कहते हैं कि मुझे मत छू, उसकी वजह ये बताते हैं कि मैं अभी तक खुदा के पास नहीं गया। अब जाहिर है जिस्म तो वो देख रही थी, मरियम मगदलीनी कोई आंखों से मजूर नहीं थी, कोई नबीना नहीं थी, कहीं बाइबल में नहीं जिक्र कि उनको नज़र नहीं आता था। तो सामने खड़ा एक शख्स देख रही हैं, उसके मतलब ये तो तसव्वुर नहीं कर सकती कि उनकी मुराद ये है कि मेरा जिस्म अभी आसमान पर नहीं गया, जैसा कि ईसाइयों का अकीदा है। वो कह रहे मैं अभी खुदा के पास नहीं गया, तो यही कह रहे हैं कि मेरी रूह अभी नहीं गई, यानी मैं जिंदा हूं। और यही वजह थी कि वो कह रहे हैं मुझे ना छू। वजह ये थी कि सलीब के जख्मों की वजह से उनको दर्द हो रही थी जब वो छूती थी। तो इससे पता चलता है कि खुद बाइबल से ये गवाही मिलती है, लेकिन तफसीली बात जो है वो इंशाल्लाह किसी और वक्त करेंगे। अब एक और असूली बात जो है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हज़कील का जो किताब है उसमें वाली सूर के बारे में लिखा है। हज़कील को खुदावंद फरमाता है कि इसको कह वाली सूर को कि तूने कहा मैं खुदा हूँ, तूने अपना दिल इलाह का सा बनाया, यानी उसका भी दावा था कि मैं खुदा हूँ, अगरचे तू इलाह नहीं इंसान है। और आगे दलील क्या दी है, अगरचे तू इलाह नहीं इंसान है। और दलील क्या दी है, दलील आखिर में ये दी है कि जब तेरे कातिल तुझे कत्ल करने के लिए आएंगे तो फिर कहना उनको कि मैं इलाह हूं। आगे लिखा है तू नामख्तूनों की मौत मरेगा। अब जैसा कि ईसाइयों का अकीदा है, इसी सवाल के मुताबिक जो हिजकील को अल्लाह ताला फरमा रहे कि उसको जाके कह कि तू दावे तो बहुत करता है कि मैं इलाह हूं, मैं खुदा हूं, लेकिन जब तेरे कातिल तुझे कत्ल करने के लिए आएंगे तो उस वक्त कहना कि मैं इलाह हूं। लेकिन मैं तुझे बताता हूं कि तू अपने आप को नहीं बचा सकेगा, क्योंकि तू इंसान है, तू खुदा नहीं है। यही तेरी खुदाई की ना खुदा ना होने की, तेरे इलाह होने की दलील है कि तू ना मखतूनों की मौत मरेगा। यानी जो दुश्मनों के हाथों से मारा जाए वो खुदा नहीं हो सकता। ये दलील खुद बाइबल दे रही है। हिजकील की किताब का बाब 28
आयत नंबर 1 से 10 तक पढ़ें। फिर एक और दलील मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं, वो ये है कि मैं मसीही भाइयों से ये सवाल करता हूं और अपने मुसलमान भाइयों को भी ये अर्ज करता हूं कि ये सवाल करें इनसे, अगर मसीह खुदा हैं कि क्या वो नातिक खुदा है या गैर नातिक, यानी बोलने वाला खुदा है या गूंगा खुदा है। अगर तो गैर नातिक, तो उसका गूंगा होना ही उसके खुदा ना होने की दलील है। लेकिन अगर नातिक खुदा है यानी बोलने वाला खुदा है, तो फिर उसको बुलाओ हमारे खुदा के मुकाबले पर, उससे वो बोलियां बुलवाओ जिनसे समझा जाए कि वो इंसान की मुकदरत और ताकत से बाहर हैं, यानी अजीम शान पेश गोइयां और आइंदा की खबरें। ये सवाल है जो उनसे करने वाला है, और ये सवाल खुद बाइबल ने उन खुदाओं से किया है जो दर हकीकत खुदा नहीं है। यसाया का बाब 41 आयत नंबर 21 से 23 में वो इबारत पढ़ देता हूं। है कोई मसीही जो इस बात का जवाब दे? है कोई मसीही जो अपने खुदा से ये पूछे वही सवाल जो खुद बाइबल झूठे खुदाओं से करती है? हम बाइबल के अल्फाज में आपसे करते हैं, खुदारा अकल से काम लें, खुदारा सूझबूझ से काम लें कि क्या ऐसी हस्ती जो बोलने पर भी कादर ना हो वो खुदा हो सकती है? ऐसी हस्ती जिसको गायब का भी इल्म ना हो वो खुदा हो सकती है? हरगिज नहीं। यही सवाल बाइबल ने किया है। मैं पढ़ता हूं, खुदावंद फरमाता है कि अपना दावा पेश करो। याकूब का बादशाह फरमाता है अपनी मजबूत दलीलें लाओ, वो उनको हाजिर करें ताकि वो हमको होने वाली चीज़ों की खबर दें। हमसे अगली बातें बयान करो कि क्या थीं, ताकि हम उनको सोचें और समझें, या आइंदा को होने वाली बातों से हमको आगाह करो। बताओ कि आगे क्या होगा कि हम जानें कि तुम इलाह हो। यानी इस ज़माना में, मौजूदा ज़माना में फिर यीशु मसीह को कहें या हमें बताएं कि इस ज़माना में यीशु मसीह ने किसी को खबर दी है आइंदा आने वाले ज़माना की या गुजरे हुए ज़माना की? हमारी ये मुराद नहीं है कि अब बाइबल से दो चार ये कहा है, हम इस ज़माना की बात करें, मौजूदा ज़माना की, क्योंकि खुदावंद जो है, वो खुदा ताला जो है, वो तो हर वक्त उसकी कोई सिफ्त ऐसी नहीं है जो मुअत्तल हो चुकी हो। यानी पहले तो खुदा बोलता था, आज नहीं बोलता। पहले तो उसको इल्म था गायब की खबरों का, लेकिन आज नहीं है। तो मैं इसी आखिरी सवाल के साथ अपने मसीही भाइयों की खिदमत में अर्ज करता हूं कि अगर तो मसीह कोई आपको खबर देता है तो वो यकीनन खुदा है, अगर कोई गायब की खबरें देता है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में और बाइबल में दोनों में ये बयान फरमाता है कि गायब का इल्म स्वाय अल्लाह ताला और किसी को नहीं है, और अल्लाह ताला ही अपने रसूलों पर वो इल्म गायब की खबरें जाहिर करता है। लेकिन अगर मसीह खुदा है तो फिर आपको इस बात का सबूत देना चाहिए, आपको बुलवाना चाहिए, और फिर पता चलेगा कि वो हकीकतन खुदा है या नहीं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरे मसीही बरादरान ज़रूर इस पर गौर करेंगे और इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे। अल्लाह ताला आपके साथ हो, और अपनी दुआओं में याद रखें। हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें, और अगर दोस्तों ने YouTube पर इस प्रोग्राम को देखना हो तो वो बाइबल स्पेशलिस्ट आईडी है हमारी, ये आईडी, इस आईडी के तहत वो देख सकते हैं। अल्लाह ताला आपके साथ हो। इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम लेकर फिर हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।